First of all, thank you to UPSC Time, and I think this is a very wonderful collaboration for someone like me who has had no peers while preparing for the examination, who were also preparing for the UPSC examination. I often resorted to these topper talks that are available on YouTube to seek guidance, to get a preparation strategy. So I think such kind of platforms are very useful for the aspirants to have a comprehensive strategy, and basically these are luminary to how we can ease the way in which we are preparing. It basically makes the UPSC journey, which seems so onerous, it makes it seem quite achievable and possible. So yeah, I'll now start with the preparation, because there is a paucity of time and we are already starting late. I will now jump right into the preparation, starting from the prelims. First of all, I took 1 year, that is 2017, to take my coaching classes. During that time, I took coaching for both general studies and for my optional. After that, in 2018, I actually started the proper self-study. So now what comprises of this self-study, I'll just get into that. Okay, so yeah, first of all, for prelims, I hope I'm audible, and so I'll get into the prelim strategy. First of all, for prelims, there are a few areas, for example, the mock test, the static portion, and the current portion, and all three have to be prepared side by side. So starting with the mock test, I think be it Insight or Vision or any kind of such coaching academies, they provide really good mock test options. What I have done during my prelims preparation was that I took about 30 to 40 test series, and approximately 25 and 30 I have solved myself in the time duration that is given, which is 2 hours. And for the rest 10 to 15 mock test मैंने खुद थोड़ा सा आंसर्स देख के उनको सॉल्व किया. After that, during the 2-3 months before the prelims, I have revised these 30 to 40 test series again and again and again. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा मेरी प्रिपरेशन का. अदर देन दैट, जो सेकेंड पॉइंट है विच इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग, ये मैंने अपने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी में थ्रू आउट किया है. ये पूरा साल 1.5 साल जब तक मैं प्रिपरेशन कर रही थी, न्यूज़पेपर रीडिंग वॉज अ पार्ट ऑफ माई हैबिट. एवरी डे अर्ली मॉर्निंग आई वुड रीड बोथ Indian Express and Hindu. During the last 2 months before the prelims, I stopped reading the newspaper. Instead, I focused on consolidating all the current affair notes that I had made and that were available in the market. आपको किसी भी अच्छे कोचिंग सेंटर के करंट अफेयर्स के कंसोलिडेटेड नोट्स मिल सकते हैं. बी इट विजन, बी इट इनसाइट, बाजीराम एंड रवि, देयर मैनी कोचिंग सेंटर्स. वो लोग मंथली करंट अफेयर्स निकालते हैं, एंड आप उन्हें अगर पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रिएट दोज कंसोलिडेटेड नोट्स दैट आर रिक्वायर्ड. और ये आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, एनवायरमेंट, एट्सेट्रा. Then comes the static portion. Static portion के लिए lot of serious aspirants already know there are defined books in the market. For example, for polity there is Lakshmikant. For economics there is Shriram. There is Shankar for environment. And TN board के लिए TN board ancient history का काफ़ी अच्छा comprehensive material देता है. फॉर मॉडर्न हिस्ट्री देयर इज स्पेक्ट्रम. तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है. ये आप साल जब आप अपना देते हैं यूपीएससी का, उसमें प्रिपेयर तो करते ही हैं, एंड इसी को आप रिपीटेडली रिवाइज करते हैं. तो अब आपके ये जो 3 एरियाज होते हैं प्रीलिम्स में, बी इट द मॉक टेस्ट विच यू विल रिवाइज, and be it the newspaper and making those consolidated current affair notes, and finally your static portion. So this is how one prepares for the preliminary examination. Now coming to the second part of the examination, which is the mains. Mains में again
we will divide these into different categories. First of all, there is your static portion. Again, फॉर स्टैटिक पोर्शन आप अपना सिलेबस देखते हैं. सिलेबस में आप ये देखते हैं कि हर टॉपिक क्या है. टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बहुत सारे कोर एरियाज़ को कवर करेंगे, खुद नोट्स बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी एनी टॉपिक. इट कैन बी अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इज़ गिवन इन GS3. आप क्या क्या देखते हैं उसमें? यू विल सी करंट स्टेटस ऑफ दैट टॉपिक, if there are any reasonable and challenges to that area, if there are any government schemes that are there in of that area जो कि अभी applicable हैं, जो अभी चल रही हैं उस टॉपिक पे, एंड देन देयर विल बी द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस जो आप चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है तो उसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस इन द नेशन वाइड क्या रहता है, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस टू द फार्मर. तो आप इस तरीके से, चाहे वो करंट स्टेटस हो, उस टॉपिक पे कुछ स्कीम्स हो जो कि प्रेवलेंट हो, या फिर कुछ चैलेंजेस हों और स्कोप एंड सिग्निफिकेंस हो, इन सब के आप कंसोलिडेटेड नोट्स बनाते हैं, आप पॉइंट्स प्रिपेयर करते हैं. यही पॉइंट्स जो हैं काम आते हैं अल्टीमेटली आपके आंसर राइटिंग में. फाइनली, फॉर एवरी टॉपिक व्हाट इज़ द मोस्ट क्रूशल थिंग इज़ कि एक वे फॉरवर्ड हर टॉपिक का होना चाहिए. अगर GS3 है, GS3 में आपके इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड problems of road network for farmers, or it can be marketing and a lack of it, which causes hindrance to a good price realization for the farmers. ऐसी हर चीज़ के लिए जो जो challenges हैं उनके लिए एक अच्छा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये बनाना नोट्स में ज़रूरी है. इस तरीके से आप कॉम्प्रहेंसिवली अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर कर पाते हैं. Now coming to the second part of the mains preparation, which is your current affairs. Like I said, I was preparing and reading the newspapers the whole year, and from there I was also preparing the notes. And current affairs में what can also help is the monthly magazines that come out. उन मंथली मैगजीन्स में टॉपिक वाइज इशू, अगेन उसके चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये सब दिया होता है. तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं. ऐसे में आप क्या करते हैं, आप दोनों चीज़ें देखते हैं. एक कि ऐसा कोई टॉपिक होगा जो ऑल टुगेदर न्यू होगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपने पहले कभी कवर नहीं की होगी, तो आप उसको एज इट इज़ अपनी बुकलेट से पढ़ सकते हैं. सेकेंड जो होता है वो होते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स, दे आर इन वोग ऑल द टाइम. इट कैन बी द इंटरनेशनल रिलेशंस, द इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इट कैन बी द इंडिया रशिया रिलेशनशिप, इन द पॉलिटी इट कैन बी सेडिशन एंड topics like that. These are always in vogue and they keep coming back in news. तो ऐसे टॉपिक्स पे आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो है नोट्स पहले से बनाए हुए होंगे. तो इस ऐसे में जब आप करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ते हैं तो उन बुकलेट से ऐसे कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल पाना जो कि मे बी आपने नोट्स में कवर नहीं किए हैं, वो आपका स्ट्रैटेजी रहता है. तो आप फॉर एग्जांपल, आई एम प्रिपेयरिंग माई नोट्स ऑन डेथ पेनल्टी. तो मुझे एक मंथली मैगजीन में एक जजमेंट मिल जाता है, जैसे कि शत्रुघ्न चौहान जजमेंट विच सेज दैट अनड्यू डिले अमाउंट्स टू टॉर्चर. अब ये एक सिंपल लाइन है एंड आप इसको लेंगे और अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू रिवाइज दिस जजमेंट ऑल्सो. एंड इन द सिमिलर वे अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, अ लॉट ऑफ जजमेंट्स आपको मिलते रहेंगे ओवर द टाइम इन द करंट अफेयर मंथली मैगजीन्स, और वो आप अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो इन दिस वे आप अपने करंट अफेयर्स को और ज़्यादा होलिस्टिक बनाते हैं और आप उनको इस तरीके से बनाते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है. अगेन अब हम थर्ड टॉपिक पे आते हैं मेंस के, विच इज़ मॉक टेस्ट. लाइक इन प्रीलिम्स, इन मेंस ऑल्सो वन हैज़ टू गिव मॉक टेस्ट अगेन एंड अगेन. सो उसके लिए चाहे वो विजन IAS हो या कोई भी अकेडमी हो, वो अच्छे मॉक टेस्ट आपको ऑफर करेंगी. एंड द स्ट्रैटेजी इज़ कि आप जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हैं आप करिए, एंड देखिए कि वेदर यू आर अडेयरिंग टू द टाइम लिमिट और नॉट, क्योंकि आई थिंक मेंस में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आपके आंसर की क्वालिटी जो कि आती है एक नोट्स अगर आपने ठीक से बनाए होते हैं तो, एंड दूसरा ये कि आप उन नोट्स को
प्रॉपरली अपने आंसर में रेप्लिकेट कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दें और आप देखें कि आप हमेशा अपनी लिमिट, जो टाइम लिमिट है, उसे अडेयर कर पा रहे हैं एंड अपने आंसर्स को विद इन दैट टाइम लिमिट कंप्लीट कर पा रहे हैं एंड कीपिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स in your answer. So this is how you use the mock test.